Hello everyone, welcome to the channel Connect with Chemistry. So basically we are going to discuss the third part of GOC today. In today's lecture we are going to discuss about localization and delocalization of electron pairs. We had a certain glimpse of it in the previous lecture and today we shall continue with this only. So see, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में बताया था. लेट मी अगेन रिवाइज इट. सो लोकलाइजेशन के लिए मैंने क्या बोला था. लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन से होते हैं जो कभी रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं कर सकते. एंड delocalized electron pairs are those which can resonate in the molecule. इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था बेंजीन रिंग का, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स गेट डीलोकलाइज्ड लाइक सी. इधर बोला था मैंने वी हैव ए बेंजीन मॉलिक्यूल वेयर these pi bonds can delocalize. Okay, so we get, after delocalization we get another hybrid of benzene ring, another resonating structure. This is basically a resonating structure where the double bonds, that is the pi bonds, get delocalized and we get a new resonating structure for benzene. Similarly C, localization and delocalization के लिए जो conditions होते हैं वो पहले हम देखेंगे. See, we have a chloroethene molecule. Ethene because two carbons are present, and with one carbon of ethene molecule there is one chlorine group attached. So it is basically a chloroethene molecule. So see, this carbon is having how many sigma bonds? There is a H present here, C double bond C, and single bond chlorine. So since carbon is a tetravalent molecule, so it must have 4 sigma bonds or 4 bonds. So we are having here 3 bonds. So another bond is here with hydrogen. So see, इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, what would be its hybridization? It's basically how many sigma bonds are present. This one is pi bond, this is counted as pi bond. So one sigma bond, this one is sigma bond, this one is sigma bond, and this one is sigma bond. So there are basically 3 sigma bonds attached to this carbon present here. So what would be its hybridization? This would be sp2 hybridized. So sp2 hybridized जो कार्बन है उसके बगल में जो क्लोरीन है, सी इट वुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये भी 4 बॉन्ड्स बना सकता है. सो इट्स ओनली 1 बॉन्ड इज मतलब इस मॉलिक्यूल में तो 1 बॉन्ड ही बना है. सिमिलरली ऐसे 4 बॉन्ड्स बन सकता है. सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट? sp3. When any sp3 group, hybridized group, is attached to sp3 hybridized group having lone pairs, okay, having lone pairs in it, is attached to an atom having sp2 hybridized carbon, then there would be delocalization of the lone pairs present in the group having the lone pairs. इधर से कैसे delocalization होगा? ये जो पेयर होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स गेट मूव्ड, रेजोनेंस होता है इधर, ऐसे delocalization हो जाएगा. So what would we get? We get a structure like this one, जिसमें क्लोरीन के पास, since it is मतलब donating one electron pair, that is one lone pair, so it is having a positive charge. और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है टुगेदर मेकिंग 1 पाई बॉन्ड. सो ये पाई बॉन्ड जब शिफ्ट करेगा किसी एटम के ऊपर, what it would make? It would make a
नेगेटिव चार्ज, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ सी दिस, इसमें क्या हो रहा है, दिस इज sp3 एंड ये sp2 कार्बन है एंड बीच में क्या आ गया, दिस वन इज एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के वजह से, इस कार्बन के वजह से डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीलोकलाइजेशन होने के लिए जो खाली डब्बा चाहिए, दैट इज खाली p ऑर्बिटल चाहिए, वो तो है ही नहीं, प्रेजेंट नहीं है। सो हियर delocalization of electron pairs is not possible, so इधर रेजोनेंस, हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। सो लेट मी मूव टू अनदर एग्जांपल। इधर देखो, इधर नाइट्रोजन is having sp3 hybridization because it is bonded to two hydrogen and this ring via this sigma bond। so इधर sp2 hybridized carbon भी present है, तो इधर localization delocalization is possible। so we would get a structure like this। double bond nitrogen and here there are two hydrogen present। so already 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड्स, देन वो न्यूट्रल रहता है, लेकिन इधर फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा, सिंस इट इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर्स टू दिस रिंग, सो इट गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज। चार सिग्मा बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स है, दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज। और इस पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जब ये कार्बन के ऊपर आएगा, इट वुड गेट कन्वर्टेड टू अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सी दिस एग्जाम्पल, इधर डीलोकलाइजेशन हो पाएगा, सोचो। डीलोकलाइजेशन होने के लिए क्या होना पड़ता है, जो ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर्स है कंटेनिंग, it must be directly attached to one sp2 hybridized carbon atom। is it directly attached to any sp2 hybridized carbon atom? is it an sp2 hybridized carbon atom? no, it is basically an sp3 hybridized carbon atom। how come sp3? see, इसको इधर बना लेते हैं। Here comes carbon with nitrogen attached to it, having lone pair, one pair of electrons, non-bonded electrons। लेकिन हाइड्रोजन के पास कार्बन इट इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, सो 2 बॉन्ड नहीं रख सकता, इट हैज़ टू मेक more 2 bonds, so it makes 2 bonds with hydrogen। it is basically a CH2 group। so इसका hybridization क्या होगा, this one is a sigma bond, this one again sigma bond and again sigma bond। so 4 sigma bonds, हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, if there are 4 sigma bonds attached to any carbon atom, then its hybridization would be sp3। so since this nitrogen atom is not directly attached to any sp2 hybridized carbon atom, so and it is basically directly attached to an sp3 hybridized carbon atom, so these lone pairs cannot resonate, cannot move, cannot delocalize, तो इधर resonance होगा ही नहीं। okay, I hope that it is clear। नाउ बेसिकली हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सी, कार्बन सी दिस मॉलिक्यूल, ये जो डबल बॉन्ड बनता है ना, दिस डबल बॉन्ड इज बेसिकली बिटवीन द pz ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम्स। दीज आर बेसिकली pz ऑर्बिटल, ये भी pz, ये भी pz। so ये pz के ओवरलैप से we get one pi bond here। so for delocalization इधर देखो, this carbon is what, one sigma bond, this one is pi bond and another
another bond is there which is between carbon and hydrogen. See, ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड भी है. दिस वन इज कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन इज कार्बन हाइड्रोजन sigma bond. So basically it is an sp2 hybridized carbon. I hope you are getting it. 1 sigma bond, 2 sigma bond, 3 sigma bond. This one is a pi bond. We won't consider this while calculating the hybridization. So this is basically we are having 3 sigma bonds. So a carbon with 3 sigma bonds is basically an sp2 hybridized carbon. So this nitrogen containing lone pair is directly attached to sp2 hybridized carbon. So इधर delocalization होगा, pi bond move करेगा. ऐसा क्यों हो रहा है? See, there is an overlap between pz orbital of one carbon with pz orbital of another carbon. अभी ये जो pi bond जिस plane में है, these nitrogen lone pairs get, they are basically in that same orbital, that is this orbital is pz. ये दो pz में थे, नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है ये कहाँ होंगे? ये भी pz में ही है. बिकॉज ऑफ विच pz इंटरैक्ट्स विद दिस pz, दिस इंटरैक्ट्स विद दिस pz. दैट्स वाई pz के साथ pz का इंटरेक्शन हुआ तो लोकलाइजेशन डिलोकलाइजेशन हुआ. किसका हुआ? इस नाइट्रोजन के लोन पेयर्स का हुआ. आई होप यू आर गेटिंग. Like see, we are having a ladder का सोचो. okay थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बट इट्स ओके. लैडर टेढ़ा मेरा हो गया. जो भी हो, what I was saying is we are having a ladder. So see, मान लो ये pz orbitals है. okay, this one is a pz orbital, this one is a pz orbital, this one is again a pz orbital. So अगर एक इंसान है, इसको अगर चढ़ना है ऊपर कुछ मतलब उसको चढ़ना है लैडर पे, सो स्टेप बाय स्टेप उसे चलने के लिए सारे ऑर्बिटल्स को, मतलब सारे जो लैडर के स्टेप्स को एक के बाद एक ऐसे ही सीक्वेंस में रहना पड़ेगा, सो दैट ये जो इंसान है ये इंसान आराम से चढ़ पाए, प्रॉब्लम ना हो. नहीं तो सोचो अगर एक ऐसे रहा, एक स्टेप ऐसे रहा, दूसरा स्टेप अगर ऐसे रहा और फिर तीसरा स्टेप ऐसे रहा, कैन ही मूव? पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ये तो लैडर का ये ऐसे चला ही गया तो वो तो गिर ही जाएगा. दिस इज नॉट पॉसिबल. व्हाट आई मीन टू से कि अगर इस लोन पेयर को इधर आना है, देन ये लोन पेयर जिस घर में है, जिस ऑर्बिटल में है, उसी ऑर्बिटल में कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई बॉन्ड बना है, उसको भी उसी ऑर्बिटल में ही रहना पड़ेगा. अगर इसको इस स्टेप से, अगर इस इंसान को लेट्स नेम हिम, क्या दे नाम, से रामू को अगर फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में चलना है, तो फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में चलने के लिए सेकंड स्टेप को फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही रहना पड़ेगा, एक ही पोजीशन में, मतलब एक ही जैसे रहना पड़ेगा, एक ही घर में रहना पड़ेगा. मतलब ये ऐसे नहीं जा सकता, मतलब सेकंड स्टेप ऐसे नहीं हो सकता, फिर थर्ड स्टेप ऐसे नहीं हो सकता. ऑल मस्ट बी इन अ सीक्वेंस, ऐसे नहीं हो सकता. सो बेसिकली वी आर हैविंग p ऑर्बिटल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? सी इन दिस पिक्चर वी आर हैविंग अ p सबशेल हैविंग 3 ऑर्बिटल्स. व्हाट आर दे? px, py, pz. ये जो px, py, pz होते हैं ये बेसिकली डिफरेंट प्लेन्स में रहते हैं. दे आर एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये px, py एंड pz, these orbitals are basically perpendicular to each other. That's why I gave this example. See, ये अगर pz है, मानो pz,
ये PZ नहीं हो सकता, सिंस दिस लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इसे परपेंडिकुलर सोच सकते हो, ये इस तरफ है, ये दूसरे तरफ है, बैकवर्ड साइड में है, तो दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर। ये PZ नहीं हो सकता। PZ होने के लिए सी दिस वन इज PZ, दिस इज ऑल्सो PZ, सेम प्लेन में है, पैरेलल है, सो वी कैन कंक्लूड देम दीज ऑर्बिटल्स एज PZ ऑर्बिटल्स। मतलब स्टेप्स है, उसको अगर PZ ऑर्बिटल को में देखे, मतलब PZ ऑर्बिटल की तरह, सो वी कैन टेक देम एज PZ ऑर्बिटल्स। लेकिन इसके साथ ये PZ ऑर्बिटल नहीं हो सकता। दे बोथ आर इन डिफरेंट प्लेन्स। अगर हम इसको एक प्लेन माने, सो PZ इज इन दिस प्लेन बट दिस वन इज इन अ प्लेन। ये जो ऑर्बिटल, अगर इसको हम ऑर्बिटल सोचे तो ये जिस प्लेन में है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेयर द PZ orbital lies. So this is not possible. So रामू को चलने के लिए, ऊपर जाने के लिए PZ ऑर्बिटल से PZ ऑर्बिटल में ही जंप करना पड़ेगा। So see, this is what I am trying to explain you कि लोन पेयर को रेजोनेंस में आने के लिए ये जो पाई बॉन्ड बना है जिसका ऑर्बिटल्स PZ है, लोन पेयर को भी PZ ऑर्बिटल में ही रहना पड़ेगा ताकि वो आगे बढ़ सके, आगे मूव कर सके। ओके, आई होप नाउ इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। सो बेसिकली इधर भी ऐसे ही कुछ हुआ है। ये जो लोन पेयर्स है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, सिंस कंजुगेशन में है, ये जिस ऑर्बिटल में होंगे दैट इज PZ ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड कहाँ है, PZ ऑर्बिटल में लाई कर रहा है, तो ये लोन पेयर कहाँ होंगे, ये भी PZ ऑर्बिटल में ही रहेंगे। बट सी इन दिस केस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ओके, दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के वजह से ये जो PZ में लाइक कर रहा है लोन पेयर, दिस इज नॉट इन कंजुगेशन विथ दिस कार्बन, हो भी नहीं सकता। इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो क्या है, sp3। इसका जो ऑर्बिटल है वो क्या है, PZ। sp3 एंड PZ दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो दोनों कभी, मतलब लोन पेयर कभी आगे मूव ही नहीं कर पाएगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। ऊपर बढ़ने के लिए दे मस्ट बी इन सेम प्लेन, लेकिन ये परपेंडिकुलर होंगे, सो दिस कैन नॉट रेजोनेट विथ दिस। सो बाकी का मीन्स लोकलाइजेशन एंड डीलोकलाइजेशन आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। ये बहुत लेंदी हो गया है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे रिगार्डिंग लोकलाइजेशन एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बेसिकली द लोन पेयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लोन पेयर्स। एंड लोन पेयर्स किसके, जो ग्रुप जिसके पास लोन पेयर्स हो। प्रीवियस वीडियो में हमने बोला था किस किस के पास हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऐसे नीचे वाले ग्रुप, सेम ग्रुप के नीचे वाले पीरियड वाले एलिमेंट्स भी हो ही सकते हैं। लाइक ऑक्सीजन ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, all are having lone pairs, but we are basically concerned about oxygen, fluorine and nitrogen. Okay, मतलब लोअर पीरियड्स में जो एलिमेंट्स होंगे उनको लेके डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे नाइट्रोजन का बताया, लाइक क्लोरीन का भी बताया, वैसे और भी कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक दिस, मतलब कुछ समझ आया हो। इफ़ यू हैव फाउंड समथिंग really relevant to the topic, then please do like and share. Thank you very much.